نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے کچھ احکامات ہمارے سامنے ذکر فرمائے۔ اس میں یتیموں کے حسن سلوک کے متعلق، پھر نکاح کے متعلق، پھر وراثت کے متعلق احکامات ہمارے سامنے ذکر ہوئے۔ وراثت کے حصے دار بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے، پھر ان کے حصے کتنے کتنے ہیں وہ بھی بتا دیے، تقسیم کا معاملہ سارا مکمل۔ اس کے بعد نکاح کے معاملات، اللہ تعالیٰ نے کچھ نکاح کی شرائط، کن کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا، جن جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کی شرائط کیا کیا ہیں، اور جن کے اوپر نکاح حرام ہے ان کی الگ فہرست ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم بن جائے گا، گناہ گار بن جائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قوانین تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے بنائے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قوانین کے ذریعے سے تمہیں اچھے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قوانین کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں پاک، صاف، شفاف رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا انعام نازل فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ہے انعام یافتہ لوگ، انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت، اس کے بعد صدیقین کی پاکیزہ جماعت، شہداء کی پاکیزہ جماعت، اور نیک صالح لوگوں کی جماعت۔ دوسری طرف دنیا میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، شیطان کے یار اور دوست ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔
ये दोनों किस्म के गिरोह दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वो गिरोह जो अपने आप को इनाम याफ्ता की तरह बनाना चाहता है, ताकि जिस तरह उन पाकीज़ा हस्तियों पर अल्लाह के इनामात नाज़िल हुए, इसी तरह हमारे ऊपर भी अल्लाह के इनामात नाज़िल हों। इसीलिए तो सूरतुल फातिहा में हम जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे, हमें सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई फरमा दे। फिर खुद ही आगे सिराते मुस्तकीम कौन सा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनामात नाज़िल फरमाए। ये हैं चार किस्म की हस्तियाँ जिनके ऊपर अल्लाह ताला के इनामात नाज़िल हुए। अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में हमें दुआ सिखलाई। जब भी अल्लाह से दुआ मांगनी है तो यूं ही अल्लाह से अर्ज़ करनी है, या अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, उन लोगों का रास्ता हमें भी अनायत फरमा दे। जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में इन लोगों के हवाले से दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह की ज़ात हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे और हमें इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक भी अनायत फरमाएंगे। उसके बाद सूरतुल फातिहा में आगे फिर और वजाहत, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मेरे अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के नक्शे कदम पर चलाना, उनके रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, तेरा गुस्सा नाज़िल हुआ और वो खुद गुमराह हो गए। तो दो किस्म की जमातें दुनिया में अपनी ज़िंदगियां बसर कर करके इस मट्टी के अंदर जा रही हैं, कब्र के अंदर लेट रही हैं जाके। एक वो लोग जो इनाम याफ्ता के कदम पर चलने वाले, और एक वो लोग जो शैतान की बातें मानकर गुमराह लोगों के रास्ता इख्तियार करने वाले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो हमने कुरान पाक में ये जो तुम्हें अहकामात दिए, कुरान पाक में जो तुम्हारे सामने किसस रखे, तुम्हारे सामने कुरान पाक में जो हदायत दी गई, जो अहकामात तुम्हारे सामने रखे गए, इन सब का मकसद ये है, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहते हैं, लियुबय्यिना लकुम ताकि बयान करें तुम्हारे वास्ते, लियुबय्यिना बयान करें, लकुम तुम्हारे वास्ते, व यहदियकुम बयान करने का क्या मतलब? वजाहत कर दें। ये अल्लाह ताला ने जितने वाक़यात बयान करें, अल्लाह वजाहत करना चाहते हैं, तफसीर रखना चाहते हैं। व यहदियकुम, और दूसरा मकसद ये है कि अल्लाह तुम्हें हदायत देना चाहते हैं, सुनाना, सुनन कहते हैं तरीके को, रास्ते को। अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले गुजर चुके। अल्लाह ये सारी हदायत देकर, अल्लाह ये सारे अहकामात देकर हमें उन लोगों के रास्ते तक पहुंचाना चाहते हैं जो इनाम याफ्ता लोग अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। अल्लाह वहां लेकर हमें जाना चाहते हैं। व यतूबा अलैकुम, और तीसरा मकसद ये है कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर देना चाहते हैं। व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला भी है, अल्लाह हिकमत वाला भी है। अल्लाह को पता है ये अहकामात बंदों के ऊपर नाज़िल कर रहा हूँ, इनके फ़वाइद क्या क्या होंगे। हकीम ज़ात है, हिकमतों वाली ज़ात है, उसको पता है कि ये काम करने के बाद इनको फ़वाइद क्या क्या होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात हमारे फ़ायदे के लिए नाज़िल फरमाए, एक एक चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए नाज़िल फरमाई। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह तो ये चाहता है, अन यतूबा अलैकुम कि तुम्हारी तरफ रहमत के साथ मुतवज्जे हों। ये एक चौथा मकसद आ गया।
इन सारे अहकामात, पाबंदियाँ, इन 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 औरतों से निकाह नहीं करना, पाबंदी। महरम ख़वातीन हैं, इनके अलावा करने की इजाज़त, फिर ये शराइत होंगी, इन इन अहकामात की पाबंदी करनी पड़ेगी। यतीमों के मामलात सामने आए, इनका रिज़्क, यतीमों का माल पेटों में मत भर लेना, इससे तुम्हें नुकसान वाक़ई होगा और तुम्हारे पेटों के अंदर आग भर दी जाएगी। ये सारे अहकामात का मकसद क्या? वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहते हैं कि मुतवज्जे हों तुम्हारी तरफ, रहमत के ज़रिए अल्लाह मुतवज्जे होना चाहते हैं। ये 3-4 मकासद अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखे कि मैं सारी अहकामात तुम्हें सुनाकर सब कुछ करके, मेरा तो ये मंशा है, मेरी चाहत ये है, इसलिए मैं अहकामात तुम्हें देता हूँ और तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ, तुम्हारे ऊपर कभी पाबंदी भी लगाता हूँ, तो तुम्हारा फ़ायदा ये है। इसमें ये है अल्लाह ताला का प्यार भरा अंदाज इंसान के साथ। जिस तरह बाप अपने बच्चे को लेकर बैठ जाए और उसको प्यार भरे अंदाज में कहे कि देखो बेटा, ये काम करना है, ये काम करना है, इसमें तेरा फ़ायदा है, इसमें ये भी तेरा फ़ायदा है, ये भी तेरा फ़ायदा है, तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखे जो उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं, और जो चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह हैं उन चीज़ों से बचे। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बयान फरमाई। अब दूसरा रुख भी अल्लाह ताला हमारे सामने रख रहे हैं। क्या फरमाया? वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति, वयुरीदु, और चाहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, यत्तबिऊना, जो पीछे चलते हैं, जो पैरवी करते हैं, अश-शहवाति, शहवतों की, जो शहवत परस्त लोग हैं, जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? अन तमीलो मैलन अज़ीमा, अन तमीलो, कि ये तुम फिर जाओ, मैलन अज़ीमा, रास्ते से फिर जाओ, मैलन अज़ीमा, बहुत दूर, जो असल रास्ता है जिसके ऊपर तुम्हें चलने के लिए दुनिया में भेजा गया, तुम इससे बहुत दूर चले जाओ, वो चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं? ये यूरोप के तरफ से जो हमें अहकामात आते हैं, पर्दा ख़त्म कर दो, क्या ज़रूरत पड़ गई औरतों को कैद करने की? हमारे इस्लाम में एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने रखी गई कि देखो, इन इन औरतों से निकाह करना हराम है, और उनके नज़दीक सब कुछ जायज़ है, निकाह करना कोई हराम नहीं है। बेटी के साथ, बहनों के साथ वहाँ निकाह आम है, हो जाता है, ताल्लुक़ है, उनका सारा मामलात हैं। अब शरीयत मुताहरा ने हमारे लिए जो अहकामात दिए, उसके मकासद हमारे सामने रखे कि उसके मकसद क्या हैं, और वो लोग हमें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, कुरान पाक ने ये भी बता दिया। वो तो तुम्हें रास्ते से बहुत दूर फेंकना चाहते हैं। ए अल्लाह, कौन से रास्ते से? ओ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सिरात मुस्तकीम है ना, उससे वो तुम्हें दूर ले जाकर फेंकना चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में बिल्कुल बात वाज़ेह कर दी कि एक अल्लाह ताला की चाहत है और एक इन दुनियावी शहवत परस्तों की चाहत है। अब हमारी मर्जी है, हम अल्लाह की चाहत को मानकर सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें और इनाम याफ्ता लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए सीधे जन्नत में चले जाएं, या फिर दूसरी तरफ ये शहवत परस्त लोग हमारे चाहते हैं कि वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूरोप के अंदर बैठा ही बंदा गुमराह करता है, उनके नुमाइंदे यहाँ भी बन जाते हैं जो 4 दिन उनकी बातें सुनते हैं और उनकी बातें सुन के ऐसे उनके तरबियत याफ्ता बन जाते हैं कि वो फिर लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, मौलवियों ने तो दीन कैसा सख्त कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, भला इतनी सख्तियाँ कहाँ पे, और ये है वो फलान, तो लोगों को गुमराह करते हैं। इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वयुरीदुल्लज़ीना, और चाहते हैं वो लोग, यत्तबिऊना, जो पैरवी करते हैं, अश-शहवाति, शहवत की, अन तमीलु मैलन अज़ीमा, कि तुम्हें दूर, रास्ते से दूर कहीं फेंक दिया जाए, तमीलो, हटा दे, फिर जाएं, तुम फिर जाओ, मैलन अज़ीमा, रास्ते से दूर तुम्हें फेंकना चाहते हैं। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, युरीदुल्लाहु,
अल्लाह चाहते हैं अन युखफ़िफ़ अन्कुम, ये कि हल्का करें तुम्हारे ऊपर बोझ। युखफ़िफ़ा तखफीफ से है, बोझ हल्का करें, अन्कुम तुमसे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर बोझ को हल्का रखना चाहते हैं, आसानी वाला मामला फरमाते हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ भी बना दिया और दुनिया में भेजकर इसके खाने पीने के मामलात भी और बाकी भी सारे। तो इंसान कमज़ोर था, व खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, और कमज़ोर पैदा किया गया इंसान को कमज़ोर, खुली का माना पैदा किया गया, इंसान को ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अब इंसान कमज़ोर था, अल्लाह ने इसको मुकल्लफ बनाया, तो मुकल्लफ बनाकर अल्लाह ताला ने ये नहीं कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उतना ही बोझ डाला जितना ये बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में रहते हुए निकाह की भी रुख्सत फरमा दी और उसके अंदर आसानियाँ भी पैदा कर दी कि एक बंदा दो शादियाँ कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। इसमें फ़ायदा क्या होगा? कोई मुतलका औरत घर के अंदर बैठी, उसके लिए भी सहारा बन जाएगा, कोई बेवा औरत घर के अंदर बैठी, उसके लिए सहारा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आसानियाँ रखी हैं। तो ये जो लोग हैं हमें दुनियावी गंदगी की तरफ ले जाने वाले, ये दुनिया के अंदर भी हमें गलत रास्ते पर चलाते हैं और आखिरत के अंदर भी हमारा बेड़ा गर्क करने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन लोगों से अल्लाह ताला की पनाह में चले जाएं और इन लोगों की बातों के अंदर कभी ना आएँ। ये सिर्फ इन लोगों की बातों के अंदर आने की वजह क्या है कि हमारी कुरान पाक से दूरी है। कुरान पाक क्या चाहता है? कुरान पाक क्या चाहता है वो अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से दो टोक बात हमारे सामने रख दी कि देखो अल्लाह ताला ये चाहते हैं, और जो शहवत परस्त लोग हैं वो तुम्हें वहाँ ले जाकर खाना खड़ा करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि जो इनाम याफ्ता लोगों के नक्शे कदम पर चलेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो इन लोगों के नक्शे कदम पर चलेगा वो गुमराह हो जाएगा। ये एक मसला मुकम्मल हुआ। इसके बाद फिर आगे मुआशरत के हवाले से अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए। दरमियान में अल्लाह ताला ने हमें हौसला दिया कि ये जो अहकामात आ रहे हैं ना, मुआशरे की इस्लाह के हवाले से या और हर किस्म के मामलात अहकामात तुम्हारे सामने आ रहे हैं, परेशान नहीं होना, ये जैसे जैसे सुनते जाओ इन पर अमल करते जाओ, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। क्या फरमाया आगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम, ना तुम खाओ अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिलबातिली नाहक तरीके से। माल एक बंदे का है और दूसरा नाहक तरीके से उस माल को खा जाता है, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, भाई ऐसे ना करो। यहां पर लफ्ज़ जो बोला गया वो है ला ताकुलू, खाओ मत। तो इसका मतलब है कि हम अगर किसी का माल खाएं नहीं, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करने की इजाज़त है नहीं। खाने का लफ्ज़ आप जब देखेंगे ना, हमेशा यतीमों के माल के हवाले से लफ्ज़ आया तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी खाने का जिक्र फरमाया, और जब सूद का मामला आया तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने खाने का जिक्र फरमाया, क्योंकि सबसे पहले और उर्फ़ आम के अंदर सबसे ज़्यादा माल जो इस्तेमाल होता है वो खाने के ऊपर होता है। बाकी ज़रूरियात तो पैसा बचेगा तो बाकी ज़रूरियात के अंदर इस्तेमाल करेगा ना इंसान। वो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो खाते भी हैं, बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो खाने का इस्तेमाल किया गया, और इस लफ्ज़ से मुराद आम इस्तेमाल है। क्या मतलब होगा? ए ईमान वालो, तुम अपना माल इस्तेमाल ना करो बैनकुम आपस में, बिलबातिल नाहक तरीके से। खाना भी आ गया और बाकी हर जगह भी वो माल इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि एक आदमी का पैसा है, दूसरा उस पैसे को अपना समझ के इस्तेमाल ना किया करे। इल्ला अन तकून तिजारतन, मगर ये कि हो तुम तिजारत की गरज से, अन तराज़िम मिनकुम, ये कि रजामंदी हो तुम्हारे दरमियान। हाँ, तिजारत की गरज से अगर एक दूसरे का पैसा खाते हो तो ठीक है, दुकान पर चले गए 5 किलो चीनी ले ली, उसको पैसा दे दिया, उसने हमें चीनी दे दी, ये तिजारत है, ठीक है, इजाज़त है, हमारा पैसा उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो ये इस अंदाज से तिजारत की गरज से पैसा इस्तेमाल करने की इजाज़त। इसके अलावा और भी कुछ सूरतें हैं जिनके अंदर पैसा, माल दूसरे का इस्तेमाल करने की इजाज़त। मिसाल के तौर पर
کسی نے ہدیہ دے دیا کہ یہ 500 روپیہ 1000 روپیہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے پیسہ استعمال کرنے کی۔ تحفہ مل گیا، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ملازمت پر تھے، تنخواہ ملی، وظیفہ ملا، ٹھیک ہے، یہ پیسہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہے تجارت اور حلال کمائی۔ تجارت، اس کے اندر بھی اگر آدمی حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے تو یہ پیسہ سب سے پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے اور وہاں پہ پورے کے پورے قوانین کا خیال کرتے ہوئے 2 نمبری نہیں کرتا، ڈیوٹی پوری کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، تو وہ بھی پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت کی غرض سے، ان تراض منکم، تراض کہتے ہیں رضامندی، خوشی سے، آپس میں خوشی سے تجارت کے ذریعے سے مال آ رہا ہے، یہ تو خوشی کا ہوتا ہے، دکان پر جاتے ہیں ہم پیسے بڑی خوشی سے دیتے ہیں، وہ ہمیں سامان بڑی خوشی سے دیتے ہیں، یہ رضامندی، یہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا حکم، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرو تم، یہ ہے ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپس میں اپنوں کو قتل نہ کرو۔ سب سے پہلا مسئلہ خودکشی کا آ گیا، خودکشی کے ذریعے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دوسرا آ گیا کہ اپنے علاوہ کسی اور کو قتل کرتے ہو وہ بھی انسانیت کا خون ہے، تو فرما دیا ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں تم قتل و غارت نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے تمہارے اوپر۔ ومن یفعل ذلک، جو بھی کرے گا یہ کام، عدوانا، تعدی کے ذریعے سے، حد سے تجاوز کر کے، قانون سے ہٹ کر، حدود اللہ کراس کر کے، جو بھی یہ کام کرے گا، یہ جو ہم نے احکامات دے دیے، مال نہیں کسی کا کھانا ناحق طریقے سے، کسی کو قتل نہیں کرنا ناحق طریقے سے، اب ہمارے احکامات سننے کے بعد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کام کرے گا، عدواناً، تعدی سے، تعدی کا معنی حد سے تجاوز کر کے، احکامات کی روگردانی کر کے اور حدود اللہ کو کراس کر کے، وَظُلْمًا، اور ظلم کے ذریعے سے یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، وہ سن لے کہ ان قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں۔ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کی ذات پر بہت آسان ہے، اللہ کو آسان ہے یہ کام کرنا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کا کوئی دبدبہ نعوذ باللہ یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیں کہ چلو ٹھیک، ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور کن کن انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں اور دنیا کے اندر بھی عزت افزائی حاصل کر لیں اور آخرت کے اندر بھی عزت افزائی حاصل کر لیں۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کیا انداز اختیار کر رہے ہیں؟ اب آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے احکامات دینا چاہتے ہیں۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے کہا ہم نے احکامات تو دے دیے، جس نے بھی ہمارے ان احکامات کی پابندی نہ کی، ہمارے روکنے کے باوجود بھی پھر کسی نے یہ کام کیا، وہ سن لے ہم اس کو آگ کے اندر داخل کریں، اور ہمارے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہمیں تمہیں آگ کے اندر پھینکنا۔ تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ، کبھی پیار والے انداز سے، کبھی کس انداز سے، یہ ایسی ہے کہ بچہ غلط راستے پہ چل پڑا، ماں باپ لے کے بیٹھ گئے، کبھی اماں لے کے بیٹھ گئی، پتر یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، جب پتر نہیں باز آیا تو 2 تھپڑ بھی لگانے پڑے، لگا دیے، کبھی 2 جوتے بھی لگا دیے اس کو، کبھی باپ نے اس کو نصیحت آمیز کلمات
کبھی پیار سے 2-3 دن پیار سے کام نہیں چلا تو کبھی جوتے بھی 2 لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہمیں کبھی پیار سے سمجھا رہے ہیں، جب پیار سے بات سمجھ آتے آتے 2-3 باتیں پیار سے کی، کبھی پھر ڈانٹ دیا کہ خبردار اگر یہ بات نہ مانی، ہمارے کہنے کے باوجود بھی یہاں سے آگے چلے تو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے، تمہیں آگ کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ہماری اصلاح کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔